میں دور حاضر کو پیش نظر رکھتی ہوں انشاءاللہ میں تقریر کروں گا. اگر علماء کرام نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ میرے بھائی نبی کے دشمن کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. میرے دوستوں میرے سرکار جب اعلان نبوت کے بعد سے اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اس وقت سرکار کے دشمن نہیں تھے. اور کیا سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دشمن نہیں ہے؟ سرکار کے دشمن کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. میں آپ کو یہ صرف ذہن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے. آپ مصالحت کے بڑے خوگر دکھائی دے رہے ہو. میرے دوستوں آج مذہب اسلام پر نہ جانے کیسی کیسی پابندیاں لگاتے ہیں لوگ. اے لوگوں ذرا توجہ کیجئے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں. ایک دشمن تو وہ ہیں جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں. اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں. ہاں وہ جماعت سرکار کی صرف تحریک سے دشمنی کر رہی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اے لوگوں جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سمجھی کی بنیاد پر کر رہی ہے انہیں بعد میں راستہ بھی جاتا. سبحان اللہ، وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، وہ راہ راستہ پر آ گئے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. ذرا توجہ کیجئے گا، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا. اور جو لوگ نبی کی دشمنی پر پھیلے ہوئے تھے یا نبی کی تحریک سے دشمنی کر رہے ہیں، نبی کی جان سے دشمنی کر رہے ہیں اور نبی کی عظمت سے دشمنی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں مل پائی ہے. ہاں ابو جہل مارا جاتا ہے، عتبہ شیبہ مارا جاتا ہے، ولید بن مغیرہ سوا کیا جاتا ہے. یہ دشمنوں کی جماعت ہے. تو پتا چلا دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے. اگر عظمت نہ جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو ممکن ہے مصالحت ہو جاتی ہے، مگر عظمت جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو دشمنی بڑھ جاتی ہے، دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے. اے جلسے میں آنے والوں اور میں آپ کو بتاؤں نبی کے دشمنوں کا حال سنو پیارے. رب کی توہین کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے، رب کریم ہے، رب چھوڑ دیتا ہے. لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا ہے. آپ کہو گے غلام بہت زیائی کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. نمرود 70 برس خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا رہا اور اس کو ڈھیل دے دی گئی تھی، مگر جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی، رب نے اسے لنگڑے بچے سے مروا دیا. یہی فرعون ہے، خدا بن بیٹھا تھا، مگر جیسے حضرت موسیٰ پیغمبر سے بغاوت کی، توہین کی، رب نے فوراً گرفت لیا اور اعلان فرما دیا اے دنیا والوں سنو، محبوب کو گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے. تو پتا چلا اگر آج ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو بھی چھوڑا نہیں جاتا ہے. مگر آج تکلیف ہوتی ہے، آج درد ہوتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ سن کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہو. اور میں خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو گستاخ رسول کے گھر پہ دے رہے ہو، گستاخ رسول کے ساتھ آپ کھا رہے ہو، گستاخ رسول کے ساتھ آپ چل رہے ہو، گستاخ رسول کے ساتھ آپ ناشتہ کر رہے ہو، گستاخ رسول کے ساتھ آپ دستی کر رہے ہو، گستاخ رسول کے ساتھ آپ سو رہے ہو، گستاخ رسول کے ساتھ آپ چل رہے ہو. اے لوگوں یاد رکھنا تمہیں گستاخ رسول سے ہوشیار بن کر رہنا ہے. ارے کمال تو تب ہے سنی بن کر جیو اور سنی بن کر مرو اور یہ اعلان کر دو اے دنیا والوں سنو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اے لوگوں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر آج حالات خراب ہے، آج اگر ماحول خراب ہے تو ٹینشن مت لو، بلکہ جیسے ہم کل نبی سے محبت کرتے تھے، جیسے ہم کل نبی سے محبت کرتے تھے اور بیٹے کے چوٹ پر اعلان کرتے تھے اور آخری سانس تک تم یہ یقین کر لو کہ آخری سانس تک ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو ولد تیرے ہیں. اور بریلی شریف سے آواز آ رہی ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے کہ آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چمچا تیرا، خاک ہو جائے ابھی چرچا مگر ہم تو رسا جب میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اے جلسے میں آنے والوں ان نادانوں کو جا کر بتا دو جو آج مساجد کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مساجد کو مٹانے کی، مدارس کو مٹانے کی، خانقاہ ہماری شناخت کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، نام محمد کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان نادانوں کو جا کر
नाम मोहम्मद को, हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें करो, शर्म नहीं आती? मर क्यों नहीं जाते? आशिक़ रसूल तो यही कहता डंके की चोट पर, रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जा। हाँ मेरे भाई, जब नबी की नामुस की बात आया करे तो अब खाना छोड़ दीजिए, जब नबी की इज्जत की बात आया करे तो पीना छोड़ दीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हमारी हजारों नस्लें कुर्बान है मेरे नबी की नामुस पर। मेरे नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाई, तुम्हारा और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है। वो क्या है? जो हुजूर ताजुश्शरिया ने हम लोगों को बता दिया, पैगाम दिया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, हाथों को नीचे कर लीजिए। अल्लाह पाक हाथ उठाने की बरकत से तमाम लोगों की मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब अता फरमाए। मेरे भाई, अब मैं एक तारीख रखना चाहता हूँ, एक तारीख इंशाअल्लाह फिर शायर इस्लाम कैप्टन साहब की आमद हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक तारीख आप जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए सहाबे किराम नबी से किस तरीके से मोहब्बत क्या करते थे। खुर्शीद भाई मैं तवज्जो चाहता हूँ। अज़ला और गारा के चंद मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर 10 सहाबा किराम को बगरज़े तबलीग अपने हमरा ले गए, यानी अपने साथ ले गए, और रास्ते में मकाम रची पर धोखा करके उन 10 सहाबा में से 8 को शहीद कर दिया। कितने को? 8 को शहीद कर दिया। और 2 को, जिनका नाम हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा था, गिरफ्तार करके मक्का ले आए और कुरैश के पास फरोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग उहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, इसलिए उनको हारिस के लड़कों ने खरीदा ताकि बाप के बदले में कत्ल करें। मेरे दोस्तों, चंद रोज भूखा प्यासा अपने घर में कैद रखा। एक दिन हारिस का बच्चा तेज छुरी से खेलता हुआ खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गया। उन्होंने बच्चा को ज़ानों पर बैठाया, छुरी लेकर रख दी और बच्चा को खिलाने लगे। जब बच्चे की माँ ने देखा कि उसका बच्चा छुरी लेकर उस कैदी के पास है जिसे चंद रोज से उन्होंने बेआबो दाना रखा था, वो कांप उठी और बेइख्तियार चीख उठी। खुबैब ने कहा, क्या तू ये समझती है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? क्या आपको नहीं पता मुसलमानों का काम फसाद फैलाने का नहीं है, मुसलमानों का काम गदर फैलाने का नहीं है, बल्कि मुसलमानों का काम है मिलजुल कर रहने का पैगाम देने का काम है। सुभान अल्लाह, मोहब्बतों का पैगाम देने का काम है मुसलमानों का। फिर इसके बाद खानदान हारिस ने चंद रोज के बाद हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों बुजुर्गों को हरम की हद से बाहर ले जाकर कत्ल के इरादे से फांसी के नीचे खड़ा कर दिया और कहा, अगर खैर चाहते हो तुम, अगर तुम खैर चाहते हो तो इस्लाम छोड़ दो, तो जान बख्शी हो सकती है। ऐ लोगों सुनो सुनो, हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। दोनों बुजुर्गों ने जवाब दिया था कि तुम कहते हो इस्लाम छोड़ दो, जब इस्लाम ही ना रहा तो जान रखकर क्या करेंगे। ऐ लोगों सुनो सुनो, कुरैश ने कहा कि अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद से कहा कुरैश ने कि अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। ऐ लोगों सुनो, तो हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद ने जवाब दिया था कि तुम कहते हो इस्लाम छोड़ दो तो जान बख्शी हो सकती है। ऐ नादान सुन, जब इस्लाम ही ना रहा तो जान रखकर क्या करेंगे। कुरैश ने कहा कि फांसी के लिए तैयार हो जाओ। कुरैश ने पूछा हजरत खुबैब से कि कोई तमन्ना आरज़ू हो तो बताओ। तो हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। कातिलों ने मोहलत दे दी। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 रकात नमाज अदा की और नमाज पढ़कर फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, देर तक नमाज पढ़ने को जी चाहता था, लेकिन सोचा कि दुश्मन ये ना कहे कि मौत से बढ़ गया है। इसके बाद कातिलों ने हजरत खुबैब को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत खुबैब फांसी पाने से कबल ये शेर कहा था, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, वलस्तु अबाली हिना उक़तल मुस्लिमा अला अय्यि शैइन काना बिल्लाहि मशरई, यानी इस्लाम की हालत में मुझे किसी तरह भी मारा जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं। इसके बाद हजरत ज़ैद की बारी आई। आपके कत्ल के वक्त कुरैश के बड़े बड़े सरदार तमाशा देखने आए थे। एक सरदार ने पढ़कर कहा कि सच कहना
अगर इस वक्त तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह कत्ल किए जाते और तुम बच जाते, तो क्या तुम अपनी इस बात को अपनी खुशकिस्मती ना समझते? हजरत ज़ैद ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर यह सर कट जाए और तेरा सर पर इसको ठुकराए, यह सब कुछ गवारा है पर यह देखा जा नहीं सकता। खून के पांव के तलवे में एक कांटा भी चुप जाए, ए जलसे में आने वालों, इसके बाद हजरत ज़ैद को भी शहीद कर दिया गया। तो पता चला सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान को इस्लाम जान से भी ज्यादा अजीज था। उन्होंने अपनी जान इस्लाम पर कुर्बान करके हमें सबक दिया है, हमें बता दिया है कि मुसलमानों को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, मजहब इस्लाम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जैसे हम कल ऐलान करते थे आज भी ऐलान करते हैं और मरते कदम तक आखिरी सांस तक यही ऐलान करते रहेंगे, या रसूल अल्लाह, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनीना चुना तुम्हारे लिए, पर तो जहां तुम्हारे लिए, जहान में सभा तुम्हारे लिए, बगल में हेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मगर फिर भी आला हजरत का दिल ना भरा, फिर आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये है नबी से मोहब्बत यार, आला हजरत की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। आला हजरत ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। आज मैं दुआएं देता हूं डॉक्टर शोएब भाई को कि आज उन्होंने ये महफिल सजा कर के ऐलान कर दिया कि तुम हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें कर रहे हो, तुम आशिक़ रसूल को मिटाने की कोशिशें कर रहे हो, तुम नबी का जिक्र को मिटाने की कोशिशें कर रहे हो। सुनो डॉक्टर, हम लोगों ने बता दिया कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। ऐ लोगों, कुर्बान हो जाइए सहाबा किराम के इश्क पर, मोहब्बतों पर, कि जंग के बदर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों में एक छड़ी पकड़कर जंग की सफे दुरुस्त फरमा रहे थे। हजरत सवाद रदी अल्लाह अन्हु सबसे बाहर निकले हुए थे। बहुत मैं कीमती बात बता रहा हूँ। प्यारे आका ने उस छड़ी से हजरत सवाद की पीठ को छूकर फरमाया, ऐ सवाद सबके बराबर हो जाओ, यानी सबके बराबर हो जाओ। हजरत सवाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इस छड़ी से काफी तकलीफ पहुंची है, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। अब देखिए सामने लश्कर काफिरों का जंग तैयार है और हजरत सवाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे काफी तकलीफ पहुंची, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। ऐ लोगों, प्यारे आका की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। हजरत सवाद ने कहा, आका आप तो अदल इंसाफ के रहमो करम के पैगंबर हैं, आप मुझे इसका बदला लेने दीजिए ना। ऐ लोगों सुनो, प्यारे आका ने वही छड़ी हजरत सवाद को दिया और कहा, लो तुम भी इस छड़ी से मेरे बदन पर ठोकर लगा लो। हाय हाय, क्या मोहब्बत है यार। प्यारे आका ने बदला देने को अपनी कमीज मुबारक पुश्ते अनवर से उठाई तो हजरत सवाद ने प्यारे आका के बदने अनवर से चिपट कर मेरे नबुवत को छू लिया और कब मेरे प्यारे आका, मैंने तो इस बहाने से बदनी अनवर से अपने बदन को लगा लिया है ताकि बदने अनवर की बरकतों से माला माल हो जाऊं। ऐ लोगों सुनो, प्यारे आका ने फरमाया, ऐ सवाद ऐसा क्यों किया? हजरत सवाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि अब जंग शुरू होने वाली है, क्या पता मैं जिंदा रहूं या ना रहूं या शहीद हो जाऊं। इसी वजह से मैंने बदने अनवर से अपना बदन लगा लिया है ताकि बदने अनवर की बरकतों से मैं माला माल हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, मेरा बेड़ा पार हो जाए। ए जलसे में आने वालों, तो पता चला कि हमारे नबी ने, हम सबके नबी ने, हमारे नबी ने हम लोगों को अदल इंसाफ का पैगाम दिया है। ए लोगों सुनो, और यह भी बात मालूम हुआ कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम का ये ईमान था कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदने अनवर से छू जाने से इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, आज अगर कोई शख्स सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ना पाकर आपके इस्म मुबारक भी को
चूम ले, नाम मोहम्मद ही को चूम ले, तो अल्लाह ताला उस पर फजरत करम ना फरमाएगा, बिल्कुल फरमाएगा। ए जलसे में आने वाला शायरी ने कहा था, तेरा आसमां जो ना मिल सका, तेरी रह गुजर पर जबी सही, हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यही सही। और मैं तो कहता हूं, अगर कामयाब होना चाहते हो तो सुन ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की दुल्ला नाम सहाबा। हाँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सहाबा किराम से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। सुभान अल्लाह।